Okay, uh, let's start from where we yesterday left. An example of people's participation in management of forest कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेस्ट का। इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर्स इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। Traditional methods of surveillance and policing has led to a complete alienation of people from the administration, resulting in frequent clashes between the forest officials and villagers. Forest and land related conflicts in the region were also a major factor in fueling the militant peasant movements led by the Naxalites. Accordingly, the department changed its strategy, making a beginning in the Arabari forest range of Midanpur district. Here, at the instance of a far seeing forest officer, A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1,272 hectares of badly degraded sal forest. In return for help in protection, villagers were given the employment in both silviculture and harvesting operations 25% of the final harvest and allowed the fuel wood and fodder collection on payment of a nominal fee with active and willing participation of the local community. The sal forest of Arabari underwent a remarkable recovery by 1983. A previously worthless forest was valued for 12.5 crores. अभी देखो, पहले के सिस्टम में क्या किया था कि जंगल के आजू बाजू के लोगों को बेदखल कर दिया था और बोल दिया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आप इस जंगल विस्तार में दाखिल नहीं हो सकते। और सरकारी कामकाज तो आपको पता ही है कि लोग इतना वो डिसिसिव नहीं लेते हैं, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ का एक ऑफिसर आया, फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने वहाँ के आजू बाजू के लोगों को ये बोला कि आप फॉरेस्ट बचाने में हमारी मदद करो तो 25% जो होगा वो आपको मिलेगा, जो भी साल उगेगा वो, और बाकी का आपको जंगल से जो भी लकड़ा या घास चाहिए वो आप सबसे नॉमिनल फीस दे के ले सकते हो हमसे। तो विलेजर्स बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए फॉरेस्ट को बचाने में, ध्यान रखने में, ये करने में। और हुआ क्या कि जो वर्थलेस समाप्त होने वाला था जो फॉरेस्ट, आज 1983 में उसकी वैल्यू 10 साल में ही उसकी वैल्यू 12.5 करोड़ हो गई। तो ये फ़र्क पड़ता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना होता है आजू बाजू वालों का उसमें, ठीक है ना। नाउ वाटर फॉर ऑल, वाटर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वी स्टडीड इन class 9 about the importance of water as a resource, the water cycle, and how human intervention pollutes the water bodies. However, human intervention also changes the availability of water in various region. आपको पता है कि पानी तो सबको ज़रूरत है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या कोई भी हो। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारा पानी चाहिए होता है हमको, राइट। So, availability of water is a prime requirement of everyone. After the above activity, would you be surprised to learn that the regions of water scarcity are closely correlated to regions of acute poverty? A study of rainfall pattern does not reveal the whole truth behind the water availability in various regions in India. रेनफॉल पैटर्न जो होते हैं वो हमको पूरी का पूरा सच नहीं दिखाते हैं कि वाटर अवेलेबल कितना है, वो उसके पीछे कहाँ से मिलेगा हमको पूरा। रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू द मानसून। बारिश की सीज़न में जितना पानी आया वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द रेन फॉल्स इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ ए ईयर डिस्पाइट्स नेचर्स मानसून बाउंटी। Failure to sustain water availability underground had resulted largely from the loss of vegetation cover, diversion of higher water demanding crops, and pollution from industrial effluents and urban waste. Irrigation methods like the dams
Tanks and canals have been used in various parts of India since ancient times. These were generally local interventions managed by the local people and assured that the basic minimum requirement of both agriculture and daily needs were met through the year. The use of this stored water was strictly regulated and optimum cropping patterns based on water availability were arrived at on the basis of decades, centuries of experience. Then maintenance of this irrigation system was also a local affair. तो कौन से पौध को कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास इस बार बारिश में कितना पानी पड़ा, उस हिसाब से चलेंगे तो खेतीबाड़ी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हमको बरसों के एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, राइट। The arrival of British changed this system as it changed many other things. तो ब्रिटिश जब आए तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हमारे अंदर. The conception of large scale project, large dams and canals traversing large distance were first conceived and implemented by the British and carried on with no less gusto by our newly formed independent government. These mega projects led to the neglect of the local irrigation methods, and the government also increasingly took over the administration of these systems, leading to the loss of control over the local water sources by the local people. तो अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए, फिर जब आज़ाद हुआ भारत तो ये सारा सरकारी कंट्रोल के अंदर में आ गया. लेकिन ये पुराने लोग जो थे, है ना, वो लोगों ने पानी की जो वाटर सिस्टम बनाई थी उसको पूरा उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था. वाई डैम्स, वाई डू वी सीक टू बिल्ड द डैम? डैम्स क्यों बनाने चाहिए? लार्ज डैम्स कैन एंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन. सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए ही डैम का पानी काम नहीं आता, बट ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं. As discussed in the previous chapter, canal system leading from these dams can transfer large amounts of water great distances. तो इस डैम में से छोटी छोटी कैनाल बना के निकाले तो पानी हमारा वो बहुत दूर तक हम पहुंचा सकते हैं. The Indira Gandhi Canal has brought greenery to considerable areas of Rajasthan. इंदिरा गांधी कैनल एक नाम है उसका. तो वो राजस्थान में दूर दूर तक हरियाली लाने में मदद कर रही है उनको. However, mismanagement of the water has largely led to the benefits being concerned by few people. There is no equitable distribution of water, thus people close to the source water grow water intensive crops like the sugarcane and rice, while people farther downstream do not get any water. The woes of these peoples who have been promised the benefits which never arrived are added to the discontentment among the people who have been displaced by the building of the dam and its canal. अभी देखो, जो भी कैनाल के बाजू में होगा उसको ज़्यादा पानी मिल सकता है, तो वो वाटर इंटेंसिफाइड क्रॉप्स ले सकता है. जैसे शुगर केन है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो जो कैनाल के डैम के बाजू में है वो ज़्यादा पानी ले सकता है, तो वो उगा सकता है. लेकिन वो कैनाल जब दूर तक जाती है तो पानी का मात्रा जो है वो कम होता जाता है. तो जो एंड में जो किसान है वहाँ तक पानी इतना अमाउंट में नहीं पहुँच सकता जितना उसको पहुँचना चाहिए, राइट. और उन बेचारों को तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो जब डैम बनाया गया था तब उनको जो सपने थे, जो आकांक्षाएं थी, वो नहीं मिलती और वो निराश रह जाते हैं. In the previous chapter, we mentioned the reasons of opposition of the construction of large dams such as the Tehri Dam on the river Ganga. You must have read about the protest by the Narmada Bachao Andolan, Save the Narmada movement, about raising the height of the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada. Criticism about the large dams address three problems in particular. तो भाई डैम की हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पानी और भी बढ़ेगा उसमें, तो और भी बिजली पैदा हो सकती है. लेकिन फिर भी लोकल लोग जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे. तो क्यों कर रहे थे? सोशल प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड ट्राइबल विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन.
देखो जहाँ पर डैम बनाया जाता है ना, वहाँ पर जान माल का खतरा बहुत होता है कि भाई डैम अगर टूटा या कुछ हुआ तो बहुत से लोग मर सकते हो आप। तो वहाँ पर जो आजू बाजू में लोग रह रहे होते हो ना, उसको बोलते हैं आप स्थलांतर कर लो, दूसरी जगह चले जाओ। तो उनको इतना पैसा ना वो तो देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं, उसको नई तरीके से ज़िंदगी बसानी है, राइट। तो अगर वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं होंगे तो कैसे होगा। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज दे swallow अप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। तो गवर्नमेंट भी जो भी खर्चा करती है उसके पास पैसा कहाँ से आता है, कि हम जो टैक्स भरते हैं उसी में से। तो जो आदमी खुद का पैसा लगा के काम करता है वो कितनी सावचेती से बनाता है, देखो आप, कि भाई आप खुद मकान बना रहे हो, आपका पैसा लगा हो, तो आप एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे, ठीक है। लेकिन जब कोई बिल्डर मकान बना रहा होता है, उसको पता है मेरे को तो ये मकान बेच देना, मेरे कौन सा रहने आने वाला हूँ यहाँ पर। तो जो काम करने वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे होता है तो उसको चलता है, राइट। वो तो यही सोचेगा मेरे को सस्ते में कैसा पड़ेगा, राइट। और जो सस्ता मिलता है वो आपको पता है क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है तभी सस्ता हो पाता है, राइट। तो गवर्नमेंट जो बनाती है वो पैसा तो आम पब्लिक का है, तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसके जेब में से पैसे नहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो उस तरह से काम करते हैं। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज दे swallow अप ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी। फिर environmental problems because they contribute enormously to deforestation and the loss of biological diversity। तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो जाएगी। The people who have been displaced by the various development projects are largely poor tribals who do not get any benefits from these projects and are alienated from their lands and forests without adequate compensation। The outsea of the Tawa Dam built in the 1970 are still fighting for their benefits they were promised। तो जब डैम बनाया जाता है तब उनको वादा किया जाता है कि भाई हम आपको ये सब देंगे, और फिर उनको वहाँ से निकाला जाता है। और कोई कोई तो 1970 में जब डैम बना था तब के वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो जनरली जो लोग हटाए जाते हैं वो गरीब किस्म के लोग होते हैं, तो आप उनको सोचो कितनी तकलीफ़ पड़ती होगी, वहाँ से हटा दोगे आप तो। Water harvesting, watershed management emphasizes scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. The aim is to develop the primary resources of land and water to produce the secondary resources of plants and animals for use in a manner which will not cause ecological imbalance. Watershed management not only increases the production and income of the watershed community but also mitigates the droughts and floods and increase the life of the downstream dam and reservoirs. Various organizations have been working on regenerating ancient systems of water harvesting as an alternative to the mega projects like dams. These communities have used hundreds of indigenous water saving methods to capture every trickle of water that had fallen on their land, dug small pits and lakes, but in place, simple watershed systems, built small earthen dams, constructed dikes and sand and limestone reservoirs, set up rooftop water collecting units. This has recharged the groundwater levels and even brought rivers back to life। अभी देखो ऑल्टरनेट सिस्टम क्या है डैम की, कि जो भी पानी हमारी ज़मीन के ऊपर गिरता है वो एक एक कतरा हम बचा के रखें, वरना वो बह जाएगा। तो पानी इकट्ठा करने का तो एक ही रास्ता है, या तो खड्डे खोद लो तो पानी खड्डों में जाएगा, वो धीरे धीरे ज़मीन में नीचे उतरेगा। ओके। दूसरा एक है कि रूफ टॉप, हमारी छत के ऊपर जो पानी पड़ता है, मैंने बोला था ना, उसको कलेक्ट करने का और पाइप थ्रू एक बड़े से खड्डे में डाल दो। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि बहुत जने सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जो समाज को कुछ फ़ायदा पहुंचे ऐसा काम करते हैं, तो ये लोग ये भी कर रहे हैं कि पानी को रिचार्ज कर रहे हैं, नदियाँ फिर से थोड़ी थोड़ी और भरने लगे, ऐसा कुछ करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया, ये बहुत पुराना है, अभी नया नहीं है कोई। खादिन्स टैंक्स एंड नदीज इन राजस्थान, बंदरास एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, बंदीज इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ahars and pines in Bihar, Kulk in Himachal Pradesh, ponds in Kandi belt of Jammu region,
and Iris tanks in Tamil Nadu. Surangams in Kerala and Kattas in Karnataka are some of the ancient water harvesting investing, including water convenience structures still in use today. तो ये सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगह के पानी बचाने के पानी संग्रह करने के टेक्निक्स हैं, नाम है, राइट। उसका पेज नंबर फिगर 16.3 फॉर एन एंशंट एग्जाम्पल है। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड द बेनिफिट्स आर ऑल्सो लोकलाइज। तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो फ़ायदा जो है वो फ़ायदा उनको मिलेगा, लोकल लोगों को ही मिलेगा, और उसमें स्पेसिफिक लोकल लोगों को ही काम करना पड़ेगा। Giving people control over their local water ensures that mismanagement and over exploitation of the resources is reduced or removed. तो वाटर मिसमैनेजमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, राइट। In largely level terrain, the water harvesting structures are mainly crescent-shaped, earthen embankments or low, straight concrete and rubble check dams built across the seasonally flooded gullies. Monsoon rains fill ponds behind the structures. Only the large structures hold water year around. Most dry up 6 months or less after the monsoon. Their main purpose, however, is not to hold the water surface but to recharge the groundwater beneath. The advantages of water stored in the ground are many. It does not evaporate but spread out to recharge the wells and provided moisture for vegetation over a wide area. In addition, it does not provide the breeding grounds for mosquitoes like stagnant water collected in ponds or artificial lakes. The groundwater is also relatively protected for contaminated by human and animal waste. अभी देखो मेन पानी ज़मीन के ऊपर खड्डा करने के पानी इकट्ठा करने का महत्व ये नहीं है कि हमको पूरे साल पानी मिलेगा, नहीं। लेकिन खड्डे करके रखने से होता क्या है कि पानी ज़मीन के नीचे उतरता जाता है और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ता जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब तेज़ धूप पड़ेगी तो वो पानी इवोपरेट नहीं हो जाएगा, वो पानी ज़मीन के अंदर ही रहेगा, राइट। तो ये एक फ़ायदा होता है हमको अंडरग्राउंड वाटर वो करने का। वी हैव सीन सम ऑफ द issues involved in the conservation and sustainable use of resources like forest, wildlife and water. इन सभी चीज़ों को हमको कंजर्व करना पड़ेगा और उसके साथ बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। दिस कैन बी मीट आवर नीडफुल परपेचुअलिटी इफ़ वी वेयर टू यूज देम इन सस्टेनेबल मैनर। नाउ इफ़ वी कम टू येट अनदर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, विच आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। आज की तारीख में देखे जाए तो कोल और पेट्रोलियम जो है हमारे वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो पेरिशेबल भी, एक बार यूज़ किया तो ख़त्म हो गया, फिर तो उसको तो बहुत सावचेती से ध्यानपूर्वक यूज़ करना पड़ेगा। Since the Industrial Revolution, we have been using increasingly amounts of energy to meet our basic needs and for the manufacture of a large number of goods upon which our lives depend. These energy needs have been largely met by the reserves of coal and petroleum. तो आजकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां आती जा रही हैं, फैक्ट्रियां लगती जाती है, तो उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी उनमें या तो कोयले की ज़रूरत पड़ेगी या कोल, डीजल, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो ज़्यादातर कोल और पेट्रोलियम जो है वो ख़त्म होता जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ दिस एनर्जी सोर्सेज इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स from those resources discussed earlier. Coal and petroleum were formed from the degradation of biomass millions of years ago, and hence these are resources that will be exhausted in future no matter how carefully we use them. अभी हम कितने भी सावचेती रखें, कितना भी ध्यान रखें, राइट, क्योंकि कोल पेट्रोल को बनने के लिए करोड़ों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में बन जाता है। करोड़ों साल पहले ज़मीन के ऊपर जितने सारे एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो डेड हो गए, वो ज़मीन में नीचे दब गए,
अर्थ का प्रेशर लगता गया, इतने सालों तक वो अंदर पकते रहे और फिर क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो उसको करोड़ों साल लगे थे। और लेकिन जिस तरह से हम आजकल यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वो सब, तो नियर फ्यूचर जो है वो ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वो ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा, है ना। एंड वी वुड नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर हमको दूसरा कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अभी जैसे कैसे पेट्रोल का हमने ढूंढ लिया है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर हमने देख लिया है कि सोलार से चलने वाले इलेक्ट्रिकल सेल हैं, सोलार कार भी आ गई है, अब तो सोलार वाटर हीटर भी आ गए हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो जितना हो सके उतना सोलर एनर्जी यूज़ करने का। Various estimates as to how long these reservoirs will last us exist, and one is that at present rate of usage, our non-petroleum resources will last for about 50 years. 40 years, and the coal reservoirs will last for another 200 years. But looking to other sources of energy is not the only consideration we would take at the consumption of the coal and petroleum. Since coal and petroleum have been formed from biomass in addition to carbon, these contain hydrogen, nitrogen, and sulfur. When these are burnt, the products are carbon dioxide, water oxides, and water oxides of nitrogen and oxides of sulfur. When combustion takes place in insufficient air, the carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide of these products. The oxides of sulfur and nitrogen and carbon dioxide are poisonous at highly concentration, and carbon dioxide is a greenhouse gas. Another way of looking at coal and petroleum is that they are huge reservoirs of carbon, and if all of this carbon is converted to carbon dioxide, then the amount of carbon dioxide in the atmosphere is going to increase, the leading of intense global warming. Thus, we need to use these resources judiciously. सम अभी देखो कोल एंड पेट्रोलियम को ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही कहा जाता है कि कोयला तो फिर भी हमको 200 साल तक चलेगा अभी, लेकिन पेट्रोलियम हमारे 40-50 साल में अभी बहुत यूज़ हो जाएगा, हो सकता है ख़त्म होने को भी आ जाए, राइट। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कोल पेट्रोलियम जलाने का, दूसरा क्या है कि ऑक्साइड्स बनता है उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब बनता है, वो जहरीली गैसें बन जाती है जिसको हम फिर सांस लेते हैं तो हमको बीमारियां हो सकती है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है उसका। Some simple choices can make a difference in our consumption pattern. Think over the very relative advantages, disadvantages, and environment friendliness of the following. Taking a bus, using your personal vehicle, or walking. तो ये एक ऑल्टरनेटिव मिल सकता है कि भाई बस हमारे घर के पास से जाती है या थोड़ा बहुत चल के भी मिल जाती है बस, तो पर्सनल व्हीकल ले जाने से तो अच्छा है कि हम बस में जाएं। यूजिंग द बल्ब्स और फ्लूरोसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स, है ना, तो यूजिंग बल्ब्स और फ्लूरोसेंट ट्यूब्स अपने घर में यूज़ करने चाहिए, ना कि पुराने जो येलो कलर की लाइट देते थे वो। यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स, अभी बल्ब यूज़ करो या तो फ्लूरोसेंट ट्यूब करो तो फ़ायदा होता है, राइट। या तो लिफ्ट लो या तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, तो लिफ्ट लोगे तो तुम्हारी एनर्जी तो बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, और आप लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। वेयरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग ए हीटर डिवाइस, घर में या तो सिगड़ी इलेक्ट्रिसिटी वाली जलाओ या एक और स्वेटर पहन लो, तो इलेक्ट्रिसिटी बच सकती है तुम्हारी, एक और स्वेटर पहन लेने से कोई नुकसान नहीं है ना, ज़्यादा ठंडी होती है तो। द मैनेजमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो एड्रेसेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर मशीन। हमारे मशीन भी ऐसे हैं जो 100% एफिशिएंसी नहीं देते हैं, राइट। जो गाड़ी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी, तो ऐसा कोई मशीन बनाया जाए कि जो 1 लीटर में 70 या 80 किलोमीटर चले, तो पेट्रोल कितना बच सकता है, तो ये मशीन की एफिशिएंसी है। Fuel is mostly commonly used in internal combustion engines for transportation, and research in the field of concentrates on ensuring complete combustion in this engine in order to increase the efficiency and also to reduce the air pollution.
एंड ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ओवरऑल क्या कहता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। वो तो पता है, डिफ़िकल्ट टास्क है। इन एड्रेसिंग दिस इश्यू वी नीड टू कीप एन ओपन माइंड विथ रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो हमें ओपन माइंड रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, आजू बाजू के झाड़ झाड़ पेड़ जानवर पक्षी ये सब भी इफ़ेक्टेड होंगे हमारी पृथ्वी की सारी चीज़ों से। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट द पीपल विल एक्ट विद देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट एज द प्रायोरिटी, बट द रियलाइजेशन दैट सच सेल्फिश गोल्स विल लीड to misery of large number of people and a total destruction of our environment is slowly growing. Going beyond the laws, rules and regulations, we need to tailor our requirements individually and collectively. तो हमको अपनी ज़रूरतों को एक अपने घर के हिसाब से भी और पड़ोसी टोटल कॉलोनी के जो लोग हैं, है ना, उन सब का कलेक्टिव सोच के हमको चलना चाहिए। वी नीड टू टेलर अवर रिक्वायरमेंट्स। हमें अपनी ज़रूरतों को कम ज़्यादा मिक्स मैच करना चाहिए, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट रीच एवरीवन नाउ एंड फॉर ऑल जनरेशन्स टू कम। तो अभी से हम संभल जाएंगे, ज़रूरतों को काप रखेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, थोड़ा और सालों तक चलेगी और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उसको भी उसको लाभ मिल सकता है। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। कल हम लोग नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।